Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। So mean temperature heat addition, why it is necessary, और हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। सो प्रीवियस क्लास में अभी हम लोग देखे क्या, इन रैंकिन साइकिल में जो हम लोग जो हीट ऐड करते हैं वो किस टेम्परेचर करते हैं, एट वेरिंग टेम्परेचर पे, नॉट एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर। सो देखो, इन रैंकिन साइकिल ड्यूरिंग हीट एडिशन प्रोसेस टेम्परेचर इज डिफर at every point but the pressure is constant throughout the heat addition process. So in Rankine cycle heat is added at the some mean temperature। ठीक है, हम लोग इन Rankine cycle में अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 1, then what will be our heat addition process? But what will be our heat addition process? This 4 to 1. Yes, 4 to 1 is the heat addition process now. This 4 to 1 process. Heat addition process. Okay, so this 4 to 1 is the heat addition process. So आप देखोगे कि ये 4 to 1 है, वो क्या है, वेरिंग टेम्परेचर है, नॉट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर।
दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, मीन टेम्परेचर, ओके, वेयर ऑल द हीट इज टू बी एडेड। सो यहाँ पे देख रहे हो 4 to 1, ओके, 4 to 1 क्या है, वेरिंग टेम्परेचर, सॉरी 4 to दिस, ठीक है, एक मिनट। सो 4 to दिस पॉइंट, ओके, यहाँ तक क्या है, वेरिंग टेम्परेचर है, देन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। सो इन रैंकिन साइकिल में हीट जो हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या है, वेरिंग टेम्परेचर से। So we can choose mean temperature in such a way that area under the 4s and 1, ठीक है, that means area under the 4 and 1 will be equal to area under the 5 6, ठीक है। कहने का मतलब है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हम लोग इस वे में सिलेक्ट करते हैं, so that area under the 4 and 1 will be equal to the area under 5 to 6, that means area under the 1 2 3 4 1 is equal to area under the 6 2 3 5। सो मीन टेम्परेचर कहने का मतलब ये है, ठीक है। मीन टेम्परेचर क्यों है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इन रैंकिन साइकिल वी एड द हीट एट वेरिंग टेम्परेचर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या हीट कर रहे हैं, सो इन रैंकिन साइकिल हीट इज एडेड एट द सम मीन टेम्परेचर। Again, we can choose the mean temperature heat addition in such a way that area under the 4 and 1 will be equal to the area under the 5 to 6। now so अब देखो heat addition Q1, okay, heat addition Q1, so Q1 क्या होगा, H1 minus H4, Q1 H1 minus H4 होगा या नहीं, Yes, sir. so Q1 equal to H1 minus H4, okay, so equal to क्या लिखेंगे, Tm S1 minus S4 if we consider heat addition, mean temperature of heat addition। now Q2 heat rejected, this means this process 2 to 3, so H2 minus H3, that means T2 of S1 minus S4, यहाँ पे लिखते हैं H2 minus S3, but यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, so H2 equal to S1 and then S3 equal to S4, okay, therefore efficiency equal to 1 minus Q2 by Q1 or 1 minus T2 of S1 minus S4 divided by Tm S1 minus S4, and this S1 S4 this will be the cancel, so equal to 1 minus T2 by Tm, ठीक है। so finally efficiency of Rankine क्या निकला, 1 minus T2 by Tm, okay, that means क्या है, efficiency of the Rankine cycle अब किस पे डिपेंड कर रहा है, efficiency of the Rankine cycle किस पे डिपेंड कर रहा है, this T2 that means lower temperature of heat rejection and Tm mean temperature of heat addition process। now in practical, अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूं तो T2 कहां तक लोअर हो सकता है, this can be fixed by surrounding temperature, okay, that means अब मेरे पास क्या बचा, Tm बचा, ठीक है। कहने का मतलब efficiency of Rankine cycle is now depend on mean temperature of heat addition, so जितना ज्यादा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होगा एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल ज्यादा होगा। सुधांशु रंजन म्यूट करो। So efficiency of Rankine cycle depend on mean temperature of heat addition. Higher will the mean temperature of heat addition, higher will be the efficiency of the Rankine cycle। Now mean temperature of heat addition can be increased by two ways। First क्या है, by supercharging और by increasing cyclic pressure। Now फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार mean temperature of heat addition को। In Rankine cycle during the heat addition process, temperature is different at every point, okay। यहाँ पे देख रहे हो कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरिंग कर रहा है, ठीक है, बट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द हीट एडिशन। सो इन रैंकिन साइकिल में क्या करते हैं, हीट इज एडेड एट सम
मीन टेम्परेचर, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं इन सच ए वे दैट एरिया अंडर द 4n1 विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द 5 to 6. So Q1 equal to H1 minus H4. Now अब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन दिस हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं इस कांस्टेंट टेम्परेचर Tm of S1 minus S4 and Q2 H2 minus H3 T2 of S1 minus S1 minus cancel, so 1 minus T2 by Tm. Now T2 can be fixed by practical limits of temperature, that means it can be environment temperature or surrounding temperature. So efficiency of Rankine cycle is now depends only on mean temperature of heat addition. So higher will be the mean temperature of heat addition, higher will be the efficiency of the Rankine cycle. So efficiency of Rankine cycle is increased by increasing the mean temperature of heat addition. So mean temperature अब कैसे increase करेंगे, आप बताओ ये सकते हो mean temperature हम लोग कैसे increase करेंगे? Now मेरा क्वेश्चन है कि mean temperature of heat addition हम कैसे increase कर सकते हैं? Anyone को बता सकते हो? How can we increase the mean temperature of heat addition? Yes, कोई भी बताओ. By superheating. By superheating, ठीक है. Okay, by superheating and by increasing cyclic pressure. So हम लोग दोनों देखेंगे अभी भी. Cyclic pressure. ठीक है. एक बात ध्यान रखो, मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है, मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है हीट एडिशन प्रोसेस कौन कौन सा है, 4 to 1. ओके, सो जब भी मैं मीन टेम्परेचर का बात करूंगा, मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है ये दोनों के बीच में ही हीट एडिशन होगा. ओके, नॉट अब यहाँ पे आप हीट ऐड करोगे दिस प्रोसेस. ठीक है, मीन टेम्परेचर कहने के मतलब बिटवीन 4 to 1 में. मीन के कहने का मतलब बिकॉज वी स्टार्ट द हीट हेयर. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट एडिशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और खत्म कहाँ पे कर रहे हैं, दिस पॉइंट 1 पे. ओके, 4 to 1 मेरा हीट एडिशन प्रोसेस है. दैट मींस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन लाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सो दिस इज हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 5 to 6 कांस्टेंट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन. नाउ सो ये मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जितना ज्यादा होगा, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल उतना ही ज्यादा होगा. नाउ क्वेश्चन है आपकी, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हम लोग दो वे में इंक्रीज कर सकते हैं, बाय सुपर हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग साइक्लिक प्रेशर. ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, मीन टेम्परेचर अगर सपोज 5 to 6 है, इसको हम लोग कब ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? दिस इज द बॉयलर प्रेशर, ये P1 है. ठीक है, 5 to 6 को हम लोग ऊपर कब शिफ्ट कर सकते हैं मेरा? ठीक है, कहने का मतलब मीन टेम्परेचर एडिशन को हम लोग कब इंक्रीज कर सकते हैं? जब मेरे को बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, कहने का मतलब बॉयलर प्रेशर जितना ज्यादा है उतना ही हम लोग क्या करें, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब है ये 1 पॉइंट सुपर चार्जिंग जितना मेरा जितना हायर होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे. ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे ना. So mean temperature of heat addition can be increased by two ways. First supercharging and by increasing cyclic pressure. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं सुपरचार्जिंग से. ठीक है, इफेक्ट जब हम लोग सुपरचार्जिंग करते हैं तब रैंकिन साइकिल में क्या इफेक्ट होता है. Now so effect of superheat on Rankine cycle. Now first जो मेरा Rankine cycle है, this one 1 2 3 4. Okay, when the initial stage changes. ठीक है, फर्स्ट मेरा ये है क्या साइकिल, 1 2 3 4 1. ओके,
ना अब हम लोग क्या करें, सुपर चार्जिंग करने का मतलब सुपर हीट कर रहे हैं। सो दिस, अब मेरा साइकिल कहाँ से आ रहा है, दिस वन, 1 days, 2 days, 3 and 4। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग इनिशियल में करते तो सपोज यहाँ पे मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होता है। ओके, नाउ अब इस 1 days को अगर मैं इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स अब मेरा पे क्या होगा कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन सम यहाँ पे हो सकता है, होगा ना। बट इट लाई ऑलवेज इन द इनसाइड द वेपर डोम। ऐसा नहीं कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन में इस वेपर डोम के यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं। So when the initial stage changes from 1 to 1 days, ठीक है, then mean temperature between 1 and 1 days is higher than Tm। ठीक है, between 4 and 1। ओके, अगर मेरा साइकिल होता है 1 2 3 4 1, ठीक है, देन हम लोग कंसीडर करते हैं कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन समवेयर होता है। ठीक है, नाउ if you increase this one from increase this one to 1 days, कहने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर हीट कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो अब हम लोग मीन टेम्परेचर हीट एडिशन कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज इन सुपर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, सो दैट साइकिल एफिशिएंसी आल्सो विल इंक्रीज। क्लियर है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ तक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं दिस सुपर चार्जिंग, जो सुपर हीट टेम्परेचर है। ओके, दिस टेम्परेचर को हम लोग कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मेटेरियल कंडीशन ऑफ द ब्लेड। ओके, ये ब्लेड्स के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि सुपर ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, और ये जनरली मटेरियल के साथ ही फिक्स्ड हो जाता है। सो यहाँ तक में किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर। ठीक है, तो मैं अपना पहले फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से पूछता हूँ। सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हम लोग दो वे में इंक्रीज कर सकते हैं। सो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सुपर हीट। ओके, सुपर हीट कहने का मतलब है स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज करके। बट क्वेश्चन आता है, बट स्टीम के टेम्परेचर को हम लोग एक लिमिटेड तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है मेटेरियल कंडीशन ऑफ द टर्बाइन्स ब्लेड पे। नाउ सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रैंकिन साइकिल। ठीक है, अब पहला तो एक था कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीट करके हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड है बाय इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। ठीक है, दैट मींस इफेक्ट ऑफ इनलेट प्रेशर ऑन रैंकिन साइकिल। नाउ सेकेंड वे में ये है। सो फर्स्ट इनिशियल साइकिल क्या है हमारे पास, इनिशियल साइकिल मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 and 1। okay, this was our initial pressure, that means P1। now अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। now so we increase the pressure, that means P1 to P2, that our cycle, then our cycle will be 5 6 3 7 5। okay, this is the P2 increasing pressure। तो यहाँ पे बता सकते हो कि क्या आपको साइकिल में कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है। when we increase the boiler pressure from P1 to P2, then you have seen any effect on this cycle। कोई इफेक्ट आपको साइकिल पे दिखाई पड़ रहा है when we increases the pressure from P1 to P2। सर 1 से 2 वो 5 to 6 में है। हाँ, जोर से बोलो, सभी को सुनाई पड़ना चाहिए। okay, when we increases the pressure, that means boiler pressure from P1 to P2, then you have you are seeing any effect on this cycle। कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी बता सकते हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं है।
आपको कुछ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में? एनीवन? 4-7 में दिख रहा है। 4-7 में दिखाई पड़ रहा है। 4-7 में क्या दिखाई पड़ रहा है? वो थोड़ा नीचे है, वो थोड़ा ऊपर में है सर। अरे तो और इंट्रोपी तो P2 में भी वही है सर, P2-1 में। चलो 20 अदर, हुआ ना सर। विशाल कुमार मंडल कुछ बोलना चाह रहा है। विशाल कुमार मंडल बताओ। सर साइकिल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। वेरी गुड, साइकिल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, सही आंसर है। ओके, साइकिल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। किस साइड शिफ्ट हो रहा है? साइकिल शिफ्ट हो रहा है। किस साइड साइकिल शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट लेफ्ट सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो साइकिल अगर लेफ्ट की शिफ्ट हो रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल के बताओ। थोड़ा सा देखो किस टेम्परेचर कम हो रहा है सर। टेम्परेचर कम नहीं, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, टेम्परेचर फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये टेम्परेचर ये फिक्स किया 1 to 5, यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है। ओके, कहाँ का टेम्परेचर कम हो रहा है ये बता सकती हो? 5 से 6 का टेम्परेचर 1 से 2 से कम है। नहीं नहीं ये इंट्रोपी कम हो रहा है। इंट्रोपी टेम्परेचर ही डिक्रीज कम हो कर रहा रहा है है। सर। सर P1 और P2 के बीच का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। नहीं, ये आंसर सही नहीं है। चलो अदर, और कोई बता रहे थे आप? विशाल सर कुमार, कुछ सिक्स जा रहा है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या हो रहा है? सर इंट्रोपी घट रहा है। इंट्रोपी घट रहा है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? और कोई आंसर देना चाहेगा इसमें? When we increases the boiler pressure from P1 to P2, then साइकिल पे क्या इफेक्ट हो रहा है? ओके, हाईएस्ट टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है 1 और 5। देखो टेम्परेचर फिक्स है, क्यों? इनिशियल में हम लोग पढ़े ऑन द सुपर चार्जिंग, it depends on the turbine blade condition पे। That's why we fix the upper limits of temperature, and that is T1 and T5. T1 and T5 with the same temperature. Now मेरा क्वेश्चन है, when we increases the pressure from P1 to P2, then साइकिल पे क्या इफेक्ट हो रहा है? तो आप गौर से देखो, साइकिल पे ओनली एक प्रोसेस में इफेक्ट हो रहा है, और वो प्रोसेस है 1 to 2 और 5 to 6। और यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है? जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ठीक है, अभी एक विशाल कुमार मंडल से आज किसी ने जवाब दिया था कि साइकिल लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है कहने का मतलब है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो मेरा वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब ठीक है, चेक करो, ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ से ड्रॉ करते तो लाइन कहाँ पे आता है? 2 पे। अब यहाँ मेरा साइकिल शिफ्ट कर गया, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे। ओके, बात समझ में आ रही है? सर फिर से बताइए सर। जो इनिशियल मेरा साइकिल है उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ पे होता है? यहाँ पे 2 पे। ठीक है, अगर मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन ड्रॉ करता, ठीक है, अगर मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन ड्रॉ करता यहाँ से, तो ये 2 था ना। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन कहाँ पे आ गया? दिस पे 6 पे। ये डॉटेड लाइन होगा। सो कहने का क्या मतलब है? समझ में आया मैं क्या बोला? कि ड्राइनेस फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? सर स्टीम का क्वालिटी ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन कम जो हो रहा है, है, कम हो रहा है। सर स्टीम का क्वालिटी घट रहा है। स्टीम का क्वालिटी घट रहा है। वेरी गुड, यही आंसर मेरे को चाहिए था। ठीक है, जैसे मैं बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा क्या हो रहा है? स्टीम का जो क्वालिटी है वो घट रहा है। ठीक है, बट स्टीम का क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम का क्वालिटी से अगर मैं कंप्रोमाइज करूंगा तो फिर टरबाइन के ब्लेड क्या होगा? इरोजन। स्टीम के टरबाइन से
क्वालिटी ऑफ द स्टीम से कंप्राइज करना कहने का मतलब है क्या हो कि उसमें लिक्विड का कहने का मतलब है वाटर का परसेंटेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि टरबाइन के ब्लेड्स पे फिर क्या होगा, कोरिजन स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है जो क्वालिटी का स्टीम होगा वो धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब मैं बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। So when we increases the boiler pressure from P1 to P2, then क्या हो रहा है, then dryness fraction धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, धीरे धीरे 2 to 6 की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक इस तरह से साइकिल फॉर्म होना चाहिए कि हम कि मीन टेम्परेचर को हीट एडिशन भी इंक्रीज कर दें, क्योंकि इफिशियंसी ऑफ मेरा इंक्रीज करना है, प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन को भी हम लोग एक सर्टेन जगह पे मेंटेन रख सकें। ठीक है, ताकि जब एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन जो है क्वालिटी का स्टीम जो मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि अगर क्वालिटी का स्टीम मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, टरबाइन का ब्लेड के लिए ये टरबाइन का ब्लेड के लिए हार्मफुल रहेगा। सो इसीलिए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन पर है। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़े, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद से क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जिसको बोलते हैं सुपर हीट साइकिल। ठीक है, जो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग पढ़े, ठीक है, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं P1 टू P2, देन क्या हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन को कांस्टेंट कहने का मतलब है एट 2 पर सपोज यहाँ पे जनरली जो क्वालिटी ऑफ द स्टीम रहता है उसको हम लोग 85% पे मेंटेन रखते हैं। ओके, जनरली प्रैक्टिकल कंडीशन में बता रहा हूँ, 85% क्वालिटी ऑफ द स्टीम मेंटेन रखते हैं। So, इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग एक साइकिल को अडॉप्ट करते हैं और उस साइकिल का नाम है रीहीट साइकिल। ओके, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, एक बार टरबाइन के स्टीम होने के बाद फिर से उस स्टीम को हम लोग रीहीट करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई उसको साइकिल का नाम दिया गया रीहीट साइकिल। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे समझ में आया कि मीन टेम्परेचर क्या है। मीन टेम्परेचर कौन कौन से दो फैक्टर पे इफेक्ट करता है, उस फैक्टर का रैंकिन साइकिल पे क्या इफेक्ट होता है, ये समझ में आया आप लोग को? Yes. Yes, sir. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से फिर नया साइकिल स्टार्ट होगा, रीहीट साइकिल। रीहीट साइकिल हम लोग कल स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं फिर से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा। सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, इसको हम लोग इंक्लूड इसलिए करते हैं मीन, क्योंकि रैंकिन साइकिल में जो हम लोग हीट ऐड करते हैं वो वैरिंग टेम्परेचर पे करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक मीन टेम्परेचर, कांस्टेंट मीन टेम्परेचर हीट एडिशन इंक्लूड करते हैं इन सच ए वे दैट एरिया अंडर द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द 4:1. So in Rankine cycle during heat addition process, temperature is different at every point, but the pressure is constant throughout the heat addition process. ठीक है, क्लियर है? यहाँ अगर मैं रैंकिन साइकिल की बात करूँ तो 4 to this point, ओके, 4 to this point यहाँ तक क्या है, वेरिंग टेम्परेचर है, देन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। in Rankine cycle heat is added at some मीन टेम्परेचर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम मीन टेम्परेचर, कांस्टेंट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एक एज्यूम करते हैं इन सच ए वे दैट एरिया अंडर द 5 to 6 विल बी एरिया अंडर द 4 to 1. ठीक है, मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है इट लाइज हायर एंड लोअर टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब है 4 पॉइंट जहाँ पे हम लोग हीट एडिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड 1 है कि यहाँ पे हीट एडिशन प्रोसेस एंड कर रहे हैं। दैट मीन्स 5 to 6 क्या है, मीन टेम्परेचर है। So we can choose mean temperature in such a way that area under the 4 and 1 equal to the 5 to 6. Now, अब जब रैंकिन साइकिल में एफिशिएंसी फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 minus T2 by Tm. Now, T2 can be fixed. ठीक है, T2 जो है वो फिक्स्ड होता है क्या, this can be fixed by surrounding temperature और environment temperature. ठीक है, this maximum T2 का लोअर लिमिट क्या हो सकता है, 30 और 40 और environment 25 डिग्री। ओके, सो कहने का मतलब है this can be fixed on environment. नाउ अब मेरा एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल डिपेंड करता है Tm.
मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। दैट मीन्स जितना ज्यादा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होगा उतना ही इफिशिएंसी ऑफ साइकिल यानी इफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल ज्यादा होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को क्या टारगेट है, साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज करना। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। अब मीन टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय 2m। आइदर सुपर चार्जिंग, कहने के मतलब है सुपर हीट करके, ठीक है, कहने का मतलब है वी इंक्रीज द दिस टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। बॉयलर प्रेशर दिस मींस वी शिफ्ट द बॉयलर प्रेशर लाइन टू अपर। नाउ अब जब हम लोग सुपर हीटिंग करते हैं, ठीक है, दैट मींस सुपर हीटिंग, तो सुपर हीटिंग करते हैं तो ये भी एक कंडीशन पे फिक्स्ड है, इट डिपेंड्स ऑन द टरबाइन ब्लेड कंडीशन। तो उसके बियॉन्ड हम लोग सुपर हीट नहीं कर सकते स्टीम को। सो पहला इफेक्ट ऑफ सुपर हीट ऑन रैंकिन साइकिल। सो इनिशियल मेरा रैंकिन साइकिल है 1 2 3 4, ओके। So initial our ranking cycle is 1 2 3 4. Now we superheat, then superheat, then our cycle will be 1 days 2 days 3 and 4. So this is our superheat. So जैसे हम लोग superheat करेंगे then mean temperature of heat addition को हम लोग increase कर सकते हैं। Suppose इन पहला साइकिल में मेरा mean temperature यहाँ होता है ना, अभी superheat कर दिए तो सब mean temperature heat addition यहाँ होगा। So कहने का मतलब है बाय superheat करके हम लोग mean temperature of heat addition को इंक्रीज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन है कि अब सुपर हीट हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है टरबाइन ब्लेड पे, ठीक है, टरबाइन ब्लेड किस मटेरियल का बना हुआ है। सो वी कैन से बट सुपर हीटिंग कैन बी डन अप टू ए सर्टेन लिमिट ड्यू टू मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द कंपोनेंट्स। सो पहला है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय सुपर हीट, ठीक है, एंड सेकेंड है बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर or inlet pressure. So initially our cycle is 1 2 3 4 1, okay, when the pressure is P1. Now if we increase the pressure from P1 to P2 then our cycle shift 5 6 3 7 5, okay, this is our P. That means कहने का मतलब क्या है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन का लाइन अब 2 2 किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, 6 की ओर। सो कहने का मतलब है जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं देन क्या हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, कहने का मतलब है क्वालिटी ऑफ द स्टीम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो क्वालिटी ऑफ द स्टीम को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक न्यू साइकिल को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम देते हैं रीहीट साइकिल, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when the maximum temperature is fixed by metallurgical condition then by increasing the pressure, okay, maximum temperature fixed किया हुआ by मेटलर्जिकल कंडीशन, ठीक है, 1 and 5 दोनों साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर फिक्स्ड है T1 at which heat is added at boiler. The mean temperature of heat addition increases because Tm between 4 and 1, ठीक है, 4 and 1 is lower than between 7 and 5, okay। फर्स्ट प्रेशर के लिए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन 4 and 1 होता, 1 के बीच में लाई करता है, बट सेकेंड के लिए कहाँ पे 7 and 5 के बीच में। कहने का मतलब है मीन टेम्परेचर हीट एडिशन इंक्रीज कर रहे हैं बाय सुपर हीटिंग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बट व्हेन टरबाइन इनलेट प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2 expansion line of steam shifts to left and moisture content at the turbine exhaust increases. So pressure of heat addition can be increased only up to certain limit, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रेशर को भी सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज मॉइस्चर क्या होगा मेरे को एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग को क्या है, अब हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल भी इंक्रीज करना है, कहने का मतलब है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को भी इंक्रीज करना है और क्वालिटी ऑफ द स्टीम को भी मेंटेन करना है। सो इसके लिए हम लोग एक न्यू साइकिल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका नाम है रीहीट साइकिल। सो क्लियर है, यस सर। ठीक है। Yes, सो sir. ठीक है, तो आज मैं ये रहने देता हूँ, 4 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रीहीट साइकिल, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, हमेशा याद रखना कि रीहीट साइकिल क्यों यूज करते हैं, मीन टेम्परेचर इंक्रीज करने से एफिशिएंसी के साइकिल पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब याद रखना है, ठीक है। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को
इंक्रीज करने का तरीका क्या है, दो तरीका, और दोनों तरीके में कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं और उसको इंक्रीज करने से साइकिल के एफिशिएंसी पे या साइकिल पे क्या इफेक्ट हो पड़ता है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रीहीट साइकिल। ओके 22 कैंडिडेट्स हैं। ओके थैंक यू। Thank you, sir.